ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੂਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि केंद्र नाल बैठक खत्म हो चुकी है। अगली बैठक कब होगी? आगे और देखते हैं, वो कवर करते हैं बैठक। ये तो आप बात कर रहे हैं, डिस्कस ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ नहीं। 8 तारीख को विरोध प्रदर्शन बंद रहेगा। हाँ 8 तारीख को भारत बंद की जो कॉल थी वो हाँ भारत बंद चलेगा। आज बैठक में क्या यस नो के कार्ड क्यों दिखाए गए थे? यस नो के जो कार्ड थे उसका क्या मतलब था? सीधे सत्य में नो चर्चा। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ को ਨਕਾਰ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ नहीं है 15 मिनट। फिर मंत्री जी बाहर चले गए उठ के, फिर दोबारा आके उन्होंने 4 दिन का समा और मंगया कि सानू समा दो। भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका पंजाबी में जवाब दीजिए। भारत बंद का जो ऐलान किया गया था उसका क्या? भारत बंद होगा, चिड़ी नहीं फर्क दिंदे, सारे भारत दे विच पूरा बंद होगा। विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा 9 तारीख। हाँ चलता रहेगा 9 तारीख। और क्या कुछ हुआ आज बैठक में? बस यही कुछ होया, और कुछ नहीं होया। भारतीय किसान सभा से बूटा सिंह जी हमारे साथ है। बूटा सिंह जी विस्तार से बताइए जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल पे तमाम दर्शक देख रहे हैं जी, मीडिया पर आपको तमाम दर्शक इस समय देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से बताइए किस तरह से खाना हुआ, उसके ब्रेक हुआ, क्या बैठक चली, कुछ तीखी नोकझोंक बहस भी हुई या मौन व्रत रखा गया? बहस वो करनी चाहते सी कि कुछ नुकते भी डिस्कस हो गए, बाकी होर साडे नाल डिस्कस कर लो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। चंदूरी साहब इधर आइए जरा। चंदूरी साहब एक सेकंड एक बार बात एक। चंदूरी साहब के नाराज हो गए। मंत्री जी ने जवाब ना दिया इस गल का, तो फिर ਅਸੀਂ मौन धार लिया। उसके बाद वो आए तो उन्होंने प्रपोजल रखी कि हमको समा दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। आपको बुलाएंगे यहाँ या ਸੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। 9 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। कंक्रीट प्रपोजल देने के लिए हमें समय चाहिए। तो किसान नेताओं ने तो साफ कर दिया कि जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक कोई भी समाधान नहीं निकलेगा।
जी। तो और क्या कुछ रहा है जो यस नो के जो बैनर्स के साथ पोस्टर्स के साथ आ रहा है जी मीडिया पे तमाम दर्शक इस समय आपको देख पा रहे हैं? देखिए, वहाँ पे हमारे किसान नेताओं ने मीटिंग में मौन व्रत शुरू किया था और उसका कारण ये था कि सरकार बार बार बात को कहीं और लेके जा रही थी। हम ये कह रहे थे कि आप सीधा टिकैत साहब एक सेकंड आ जाइए। टिकैत साहब, जी मीडिया पे तमाम ये यस और नो के ये देखिए टिकैत साहब है भारतीय किसान यूनियन के, राकेश टिकैत जी प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। ये जो यस और नो के आप लोगों ने पोस्टर दिखाए थे, क्या मतलब समझा जाए? क्या ये है कि सरकार इसी पे ही काम करे, हाँ या ना? हाँ या ना किस चीज के लिए? बिल वापसी, उसमें एमएसपी में कानून बने, यही 2 सवाल है। तो चौधरी साहब, इसमें नो चर्चा भी लिखा हुआ था, चर्चा नहीं होगी, अमेंडमेंट का ऑफर दिया गया था क्या आप लोगों को? दिया गया था, नो चर्चा। अगली मीटिंग का क्या समय तय किया गया? 9 तारीख को 11:30 बजे। और जो भारत बंद की कॉल है उसका क्या होगा टिकैत साहब? कंटिन्यू रहेगी, चलेगा, भारत बंद होगा। वो भारत बंद होगा, वो कॉल रहेगी। आप लोग की बैठक कब है? आप इस पूरी मीटिंग को लेकर कब चर्चा करेंगे? आप चलती रहेगी, कल भी मीटिंग रहेगी, होगी। तो ये टिकैत साहब, चौधरी साहब एक सवाल, चौधरी साहब ये बताइए आखिरकार इस मीटिंग का निचोड़ क्या निकला? क्या गतिरोध निकला? कि गतिरोध अभी बना हुआ है, पीसफुली गतिरोध है। हमने साइलेंट रह के वहाँ पे अपना एक किस्म से साइलेंट रहे। सरकार को आप जो क्या सरकार की तरफ से कहा गया आप लोगों को? सरकार को आगे फिर आज कुछ नहीं चर्चा हो रही तो एक दिन फिर इस पे बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हम अपना ऑफर में क्या था? अमेंडमेंट किस चीज को लेकर? सुना नहीं। ही नहीं। और क्या कुछ चर्चा हुई थी इसके अलावा? कुछ नहीं, चर्चा यही है कि वे कहते थे कि बात सुन लो, हम कहते थे बीच में मंत्री जी बीच में छोड़ के भी गए थे क्या? आप लोग की पूरी चर्चा थी? नहीं, छोड़ के नहीं गए, सलाह करने गए। हम भी चले गए, हम सलाह कर आंदोलन का प्रमुख काका जी एक बार आप काका जी एक सेकंड जी आप आइए। तो बिल्कुल जो तमाम किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं वो लगातार बने हुए हैं और लोगों से भी आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से पूरी चर्चा हुई है, ये देखने वाली बात है कि 9 तारीख का प्रपोजल दिया गया है और 9 तारीख के प्रपोजल में अब क्या कुछ फैसला किया जाएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण जिस तरह से बात होगी। हाँ, और ये यस और नो के जो पोस्टर बैनर्स के साथ जो तमाम किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं और तमाम मीडिया को अब यहाँ ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की ये है कि किसान अड़ गए हैं और जिस तरह से बात रद्द कराना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? अर्थ कोई नहीं होता। इस करके वो रद्द करने की मांग ते अड़े हुए हैं, रद्द कर लीजिए। भारत बंद रहूगा बाजी, भारत बंद रहूगा बाजी। हाँ, 8 तारीख को भारत बंद लाइव हो, ये दसो। बिल्कुल भारत बंद रहेगा, ये ऐलान किया जा रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी तो तमाम किसान यूनियन की तरफ से 9 तारीख को जो मीटिंग का ऑफर दिया गया है उसको स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है। बहुत जिस तरह से ये जो चर्चा है पूरी राकेश टिकैत से आपकी बात कराई, तमाम किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से आपकी लगातार हम बातचीत कराने की कोशिश करते रहेंगे। और ये काफी मीटिंग में जो यस और नो के जो पोस्टर्स के साथ जो लोग आए थे ये काफी महत्वपूर्ण था। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਲਾਂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ बरकरार है। मौन व्रत रख लिया गया आज। देखिए, जब वार्ता स्टैंड हो गई, वार्ता का कोई अर्थ नहीं निकला। वो बार बार ये कह रहे थे कि एमएसपी पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। हमने कहा वो भी हमारा मुद्दा है, उस पर बात भी करना है। अभी 3 कानूनों में हमने संशोधन कर दिया है, ये तब्दीली कर दी है, तो आप उसको स्वीकार करें। हम कहा ये बात आप लगातार 5 बैठकों से कह रहे हैं, परंतु ये हमको स्वीकार नहीं है। अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है। आप तो इसको रद्द करिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। उसके बाद हमने कहा कि अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद सबने बैठक में कहा कि अब इनसे कहा जाए यस या नो। तो ये हमने इस प्रकार की फाइल तो शिव कुमार कक्का जी ये दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो 9 तारीख का जो न्योता है वो आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं है? देखिए, हम लोग पुराने सीनियर लोग हैं और डायलॉग की चर्चा होनी चाहिए। डायलॉग से तो हमने कहा कि हाँ, हम वार्ता करेंगे 9 तारीख को। 9 के बाद भी अगर आवश्यकता पड़ी तो बाद में बात करेंगे, पर डायलॉग से रास्ता निकले
ये हमारी इच्छा है। भारत बंद की जो कॉल है उसको लेके क्या होगा? भारत बंद यथावत हमारा जो कार्यक्रम है वो रहेगा, आगे के भी हमारे जो आंदोलन है वो भी चलते रहेंगे। समझ में क्या आ रहा है कि क्या आप लोग बनवा नहीं पा रहे, आपकी स्ट्रेंथ कम है, या सरकार आपको लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि आप लोग को समझा लेगी? इसको क्यों टांगे हुए? स्ट्रेंथ कम का सवाल नहीं आ रहा है इसमें। नहीं मान नहीं रहे ना, 5 राउंड की बैठकें हो चुकी है जिस तरह से। स्ट्रेंथ का सवाल नहीं आ रहा, सरकार जिद कर रही है, स्ट्रेंथ हमारी भरपूर है और आ रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश सबसे दूर है, वहां से 500 ट्रालियां पलवल के 5 किलोमीटर पीछे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। 500 ट्रालियां हमारी खड़ी हैं अभी मथुरा में, उनको रोक दिया गया है। वो जब 1000 ट्राली मध्य प्रदेश से रवाना हो सकती है 1000 किलोमीटर से, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है। क्या एक आखिरी सवाल, अमेंडमेंट्स का क्या ऑफर था? अमेंडमेंट्स का क्या ऑफर जो दिया गया था सरकार की तरफ से? अमेंडमेंट का जो ऑफर बताया सुबह कि आप पहला अमेंडमेंट था उसमें कि मंडी में व्यापारी को लाइसेंस आवश्यक कर देते हैं, एमएसपी पर गारंटी देने पर हम आश्वस्त करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम आपको ये तमाम जो उसमें कमियां हैं उनको दूर कर देते हैं, भूमि की सुरक्षा के लिए एक कानून बना देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसमें थी और इन्हीं पर हमको आपत्ति भी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जिस पर चर्चा कि आप बिल वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। देखिए, हम लोग जो पुराने लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि अगर इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं तो एक्ट 0 हो जाता है। जब 0 हो गया तो उसको फिर आप क्यों लटका के रखें? क्योंकि आम किसान की मांग ये है कि इसको रद्द करिए। आम किसान पूरी बारीकी से चीजों को नहीं समझता, वो एक ही बात समझता है कि ये हमारी मौत का फैसला। आपको कॉन्फिडेंस है कि अगले राउंड की बैठक में ये बातें मनवा लेंगे? हाँ, हमको विश्वास है कि अगले राउंड की बैठक। सरकार झुकी है पहले से ज्यादा? पहले से ज्यादा झुकी नहीं कह सकते, पर कम फॉरवर्ड है। सरकार 2 कदम आगे आ रही है। हमारी डेडलाइन है कि हम इससे आगे नहीं आ सकते। जो किसान बैठे हैं वो अभी बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे या फिर दिल्ली कूच के और भी कुछ इशारा आप लोग? देखिए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सरकार जैसे जैसे हमारी बातों को अगर नहीं मानेगी तो हम फिर आगे। फिलहाल तो अभी यथास्थिति रहेगी, अभी यथास्थिति रहेगी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो पाजी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जी मीडिया के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। सतनाम जी है, सतनाम जी पंजाबी में आप जवाब दीजिए, लगातार आपसे बातचीत होती रही है, किस तरह का नतीजा, क्या कुछ बातचीत रहा? देखो, सरकार बहुत पीछे हट गई है तो किसानों का, उनके एक तरफ से किसानों का दबाव है, एक तरफ उनका WTO जो कारपोरेट घराने उनका दबाव है, उसके बीच में है। अब देखना है भी किसानों का दबाव वधा है कि उनका दबाव वधा है। असीं चाहुंदे हैं भी जिहड़े कारपोरेट घराने आ इनको छोड़ो, किसान जिहड़े असल देश के वारिस आ, जो देश को चलाते हैं, देश को खिलाते हैं, देश को पहनने के लिए लेते, उनकी मांग मानो। आज जो कहते ये कर देंगे वे कर देंगे, वो सब एवं ना टूटी फूटी बात करते। असीं चाहुंदे हैं भी इन्हां नूं इन टोटो रिपील करो। अगली मीटिंग विच आओगे? हाँ, आवांगे, मीटिंग च आवांगे। कह के आए हैं भी मीटिंग दे विच आवांगे, पर फिर भी असीं जाके अपनी मीटिंग करांगे। कल सुबह साडी मीटिंग हो रही है, ਉਹਦੇ ਚ और ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। और 9 तारीख का जो इन्विटेशन है स्वीकार है आप लोगों को? हाँ, 9 अजे तो स्वीकार है, पर फिर भी उत्थे कोई साडी तब्दीली भी आ सकती है। भारत बंद जारी रहेगा? भारत बंद तो जारी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? आर्या, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बार बार वही बातें दोहरा रही है जो पहले दिन से बात थी, और सरकार अमेंडमेंट की बात स्वीकार कर रही है। हमारा सिरे से हमने ये बात सरकार की खारिज कर। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।